If it is visible to you, Yes, ma'am. Yes, ma'am. code is visible clearly. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay, we have already started with capacity of party or capacity of to contract. There were several things. Once we will be going through all these particular points, there are three things to be considered when we are having a particular contract and when we are going to make a contract. The first thing, that is minor. The particular party to whom you are making a contract must not be a minor. Second, that is person must not be of an unsound mind. And third, that is must be qualified by law or must not be disqualified. Okay. Now come to the minor. We have already discussed with the minor. A minor is a person who has not completed 18 years of age. So all these points we have discussed. A minor can be a agent. Minor can be a partner, a sleeping partner, or certain things like that. But it cannot be act as a direct party for a contract. Come to the mental incompetency or soundness of mind. Mental incompetency itself will tell you कि mental soundness, mental mindset of a particular person must be of a sound mind, because when a particular party is making a contract, they must be aware of all the facts associated with the contract. जितने भी टर्म्स कंडीशंस, जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी आपने कंसिडरेशन रखे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टैंड बाय बोथ द पार्टी. That is the basic concept with the mental incompetency. That means mental incompetency must not be there, pehla. Or the thing is, soundness of mind must be there. Soundness of mind is only the ability to understand whatever it is being associated with the contract. Now, under this, soundness of mind will be going to define by three things. One is lunatic, other one is idiot, and third one is drunken or intoxicated. लुनैटिक्स आर द पीपल दोज हु आर, ये वर्ड जो है आपको वर्ड का मीनिंग, और इडियट तो जनरली ऐसा होता है ना, हम नॉर्मल डेज में हर किसी को भी बोल देते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज अ इडियट पर्सन, द पर्सन इज नॉट एक्टिंग करेक्टली और समथिंग लाइक दैट. बट एक्चुअली lunatic and idiot, two people are there. Lunatics are the people because of any of the accident, because of any of the hypermedicines, or because of certain type of conditions or circumstances, the person become of unsound mind. मतलब अगर कोई किसी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द एक्टिविटी मेंटल इनकम्पिटेंसी खो दिया है, या किसी को अब वो मेंटल हो गया है या समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो पहले तो अच्छा था, बाद में उसके साथ में कोई एक्टिविटी हो गई है, इंसिडेंट हो गया है जिसके कारण उसकी साउंडनेस चली गई है, उसको आप लुनाटिक्स बोलते हैं. बिकॉज लुनाटिक्स और ल्यूसिड इंटरवेल्स होते हैं. इन ल्यूसिड इंटरवेल्स मतलब एक इंटरवेल के लिए वो उसकी माइंडसेट सही नहीं थी. उस इंटरवल के बाद वो पहले अच्छा था, या लूसिड इंटरवल खत्म हो गए तब वो फिर से अच्छा हो गया. So the thing is like that, lunatics are a particular people, those who are with the circumstances because of any of the conditions they become of unsound mind. Second आता है idiots. Idiots are the people those who are by birth they are of unsound mind. दो लोगों टाइप के लोग होते हैं जिनकी मेंटल इनकम्पिटेंसी बेसिकली अनसाउंड माइंड होती है. वैसे तो वो सही रहते हैं, बट एक होता है इडियट by birth because of any of the mental illness, the particular person become of unsound mind by the birth. Until the end of their life they will be becoming like that only, है ना. जिनके सुधरने या चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं. ऐसा नहीं होता नहीं होते हैं, हो सकता है ड्यू टू एनी ऑफ द सीवियर सर्जरीज और समथिंग लाइक दैट दे बिकम ऑफ साउंड माइंड. तो इनके साथ में क्या होता है, इवन लुनाटिक्स और इडियट्स दोनों के साथ में, the thing is when they are of an unsound mind they cannot make a contract, and when they are of a sound mind they can make a contract. अब आप बोलेंगे idiot sound mind में कैसे आएगा. इडियट के साथ में ऐसा होता है कि दे एक टाइम पीरियड हो सकता है आ जाए उनकी लाइफ में कि उनका मेंटल इलनेस क्योर हो जाए एंड दे बिकम ऑफ अ साउंड माइंड. So from where they become of a sound mind they can make a contract, and उसके पहले या उसके बाद में जब तक वो अनसाउंड माइंड के रहेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सेम लुनाटिक्स के साथ में है कि वो पहले तो सही था तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, अब उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस के कारण उसकी इलनेस चली गई, सॉरी उसका साउंडनेस चला गया, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी नॉट एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पर्टिकुलर पर्सन बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड. ओके.
Come to the third one, that is drunken or intoxicated person. Intoxicated और drunken तो पता है कि किसी ने drink किया हुआ है, तो वो person जब तक उस state of mind में रहता है, the party cannot make a contract because the person is not able to understand whatever the terms and conditions associated with the contract at that time period. The person is of an unsound mind because that particular of the drunkenness or something like that. और the thing is intoxicated and drunken क्या है? Drunken तो आपको पता है, intoxicated is something कि आपने मेडिकेशन लिया है, इतनी हाई मेडिसिन है कि इतनी ज्यादा आप पर्टिकुलरली उस मेडिसिन की डोज में है कि the things are not understandable to you. So when you are a particular person is of an intoxicated person, the person still that time period तक में they cannot make a contract. Other than that, they can make a contract even with the drunken person. Hope it is clear to you. There is a doubt. Yes. Tell me. Like you just mentioned that people who are having mental issues and that particular category of people are not eligible for making a contract, which is fine Okay. because it can be medically proved. But Okay. what about intoxication? It's a temporary thing, right? So how can it be proved in court that so and so person was drunk or intoxicated? The prescription और drunken का तो situation ऐसा है ना. The thing is, if the party is proving, मतलब आप जिसके साथ में contract करने जा रहे हैं ना, ये आपको तो पता है कि the particular party is drunken and is not understanding the things correctly. And if you are making still a contract with the contract will be not a valid contract. आपको पता है, वो पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पता होगा ना. वो पर्सन को अगर पता भी होगा तो वो उतना समझ ही नहीं सकता है ना. सेम विद द माइनर जो केस होता है कि माइनर माइनर तो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो सेम ड्रंकन पर्सन भी बोलेगा अरे मैं तो सही हूँ, मेरे को सब समझ में आ रहा है जो तुम बोल रहे हो, तो साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट. बट बीइंग अ पर्टिकुलर पार्टी यू आर एबल टू अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको ये पता है कि एक ड्रंकन पर्सन है तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है. क्यों? कल को वो जाके ये क्लेम कर देगा कि आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन और इस पर्टिकुलर पार्टी ने मेरे से जबरदस्ती साइन करवा दिया. ट्रू मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि इन अ सिचुएशन वेयर उसने वो ऐसा क्लेम कर दिया, हाउ कैन ही प्रूव दैट ही वाज ड्रंक? मेंटल प्रॉब्लम तो प्रूव किया जा सकता है, बट कोई ड्रंक था वो कैसे प्रूव होगा? यही होता है कि वो प्रूफ नहीं कर सकता है. बट द थिंग इज सू तो कर सकता है. आपको सू करेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेडिकल टेस्टिंग में या कहीं को प्रूफ कर दे कि मैं तो डेली पीता हूँ तो मैं उस दिन भी पिया होगा. Okay. मतलब the thing is everything is based on a proof, but the thing is इसीलिए तो आपके फ्रॉड्स होते हैं ना. इसीलिए तो चीजें होती है कि आपको अपने तरफ से, इसीलिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि द पर्टिकुलर पार्टी इज इन अ साउंड माइंड. तो अगर आपको ये पता है एंड दैट सिचुएशन को यू नो दैट ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स आर बीइंग करेक्ट, whatever the agreements are been there. अब ये होता है कि कई बार कई केसेस में आप हार भी जाते हैं when you know that the party was telling lies, so that would be the fraud. The fraud contracts are a void contract or a voidable contract. तो ये होता है कि आपके प्रूफ करने पे, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो the things will be okay with you. Okay? प्रूफ करने पे the thing is only with the proving. Yes. Yes, tell me. मैम इधर फुल वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही है टू एवरीबॉडी? क्लियर ना? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ. थोड़ा डिस्टरबेंस है बट स्टिल ऑट. हाँ, ज्यादा आएगा तो मुझे प्लीज टेल मी, एंड कम होगा तो इट विल बी ओके बिकॉज थोड़ा बहुत इश्यूज तो है. डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और अदर पर्सन. The thing is, other than mental illness, other than minor, there is the third thing the capacity of party defines करता है. The first thing under this disqualified. The law is going to disqualify the particular people to make a contract. The thing is with this particular thing will be like this. The first is alien enemies, as we have earlier discussed. Alien enemies are the people, those who are having war relations with our country, so they will be termed as an alien enemy. Alien friends होते हैं जिनके आपकी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो आपके एलियन फ्रेंड्स होते हैं. एलियन फ्रेंड्स के साथ में आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कर सकते हैं. एनिमी के साथ में दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टिल दे आर योर एनिमी.
जिस दिन उसकी वो एनिमी वाली टैग हट जाती है, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन प्रीवियसली आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में जब भी वॉर डिक्लेयर होते हैं, तो दे विल बिकम योर एलियन एनिमीज एंड वी कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम टिल दैट पर्टिकुलर पीरियड, और तब जब तक वो अपने एलियन एनिमीज होते हैं। जहां पर वो एलियन एनिमी हट जाता है, वॉर सिचुएशन खत्म हो जाते हैं, तो आप फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टिल दे विल बी बिकमिंग आवर एलियन एनिमीज। ओके, come to the next, that is insolvent. Insolvent people are the bankrupt people. जब तक उनका bankruptcy है या जब तक उनको insolvent declare कर दिया गया है, तब तक आप उनको contract नहीं कर सकते, else you can make a contract. So they are also disqualified by law to make a contract. Come to the third, that is prisoners or convicts of crime. That means those who are in a prison, imprisonment, और जिनके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके लिए लॉ ने स्पेशली बोला है these people are not eligible for making a contract, so these people cannot be making a contract. Those जो criminals होते हैं या जो imprisonment में है, till that period, till the cases are not cleared out of those people, they cannot make a contract, so they will be also disqualified by law. Come to the next, that is foreign sovereigns or ambassadors. Foreign sovereigns and ambassadors are the people those who are being already posted in any of the official posts in other foreign countries. ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट की, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई हाई पोस्ट में एसोसिएटेड है, तो ऐसे लोगों के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, बट इनके साथ में अगर इनको आपको सू करना है तो यू कैन नॉट क्लेम इनटू योर कोर्ट, आप उनको अपने कोर्ट में नहीं सू कर सकते। तो अगर उनको आपको सू करना है तो आइदर यू हैव टू मूव टूवर्ड्स देयर कंट्री to file a suit against those particular people, or if you want to file a suit in your country, you have to take a special permission of central government to file those particular people into your court. Okay, तो इनके साथ में एक केस होता है, you can make a contract with these people, but due to they are already in a official any of the posts of in any of the government, so that अगर आपको आपके कोर्ट में उनको केस सूट करना है, तो you have to go with the central government permission. Okay. And last one, that is corporates or any of the company. Corporates or any of the companies के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके मेमोरेंडम में ये मेंशन नहीं होगा कि दिस कंपनी कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंपनीज ऑल्सो। तो जब अगर उनके मेमोरेंडम में मेंशन है, मेमोरेंडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, एनी चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी देयर फॉर ऑल द कंपनी, जिनपे वो पर्टिकुलर कंपनी का बेसिक क्राइटेरिया लिखा होता है कि कंपनी किसमें काम करती है, क्या क्या और क्या नाम है उसका, या वी आर गोइंग टू रीड फर्दर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो। तो कॉर्पोरेट अगर उनके मेमोरेंडम में मेंशन कर दिया है कि वी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंपनीज ऑल्सो, अगर ये लिखा है या इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, तभी वो किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अदरवाइज दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ओके, आई होप दीज आर क्लियर टू यू। Come to the next, that is free consent. The next essential is the free consent. Capacity of article, I hope it was clear to you. Now the next one is free consent. It is again a very big point for the essential of and very important point for your essential elements of a contract. Under this, it has been written section 10 of the ICA, that is Indian Contract Act. A contract is valid if it was entered into by free consent of the party. मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसेंट फ्री के साथ में बना है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10. सेक्शन 10 says that a contract with a free consent will be only a contract, else it is not a contract. तो फ्री कंसेंट अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो कंसेंट मतलब आपका जो आपने विलिंगनेस दिखाई है या जो एग्रीमेंट आपने बोला है कि आई एम गोइंग टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू और आई एम गोइंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू. इफ आई एम सेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, इट मस्ट बी फ्री ऑफ एनी ऑफ द बाउंडेशन, फ्री ऑफ एनी ऑफ द थ्रेटनिंग, फ्री ऑफ एनी ऑफ द टाइप ऑफ थिंग कि मेरे डाउट भी नहीं होना चाहिए कि आई एम एग्रीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट विल बी विद द फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट, द कंसेंट आई एम गिविंग इज फ्री ऑफ एनी ऑफ द डाउट. Again, if you can see that section 14 of the Contract Act defines free consent as consent not given under. मतलब free consent तब होगा जब ये 5 things will be not there. What is the 5 things? The first one is the coercion. We have already discussed with number of things with these particular things. Coercion, सिंपल टर्म्स में कोएक्शन का मतलब है धमकाना, थ्रेटन करना.
डिटेन करना, थ्रेटन करना और किसी को फोर्स करना कि आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके साथ में कुछ भी पर्टिकुलरली मिसहैपनिंग करवा दूंगा, या मैं आपको सुसाइड अटेम्प्ट में करवा दूंगा, या आपके किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को किडनैप करा दूंगा, सच टाइप ऑफ थिंग्स इफ यू आर गोइंग, सो दैट विल बी कोएर्सिव। सेकेंड आता है दैट इज विद द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, undue influence is a undue advantage, undue influence because particular party is dependent upon you, so that you are being forcing that particular party to sign a contract. That will be undue influence or undue advantage, you can say. Next is fraud. Fraud itself, whatever the terminology, you know that is a fraud. Next is misrepresentation. Fraud का ही एक पार्ट होता है misrepresentation. फ्रॉड अनइनोसेंटली होता है तो मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होता है. How it will be there, we are going to read in further particular point out of misrepresentation. And last one is the mistake. Mistake is again certain different terminology with the fraud, misrepresentation and the particular thing with the mistake. Mistake is गलती, misrepresentation is innocently जो गलती हो जाती है वो, और fraud जो है ऐसी गलती जो आपने जानबूझ करके करी. तो तीनों में एक डिफरेंस होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द फर्दर पॉइंट. Come to the first one, that is coercion. As I told you, it is dhamkana or something with the threatening or committing somebody with the forbidden, any activity which is forbidden by law. So if you will see the definition, section 15 defines coercion as follows. First, the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. What is Indian Penal Code? Any idea? What is Indian Penal Code? Mansi is there. Mansi Verma. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Sorry, ma'am. Voice broke. I didn't listen. Oh, voice broke नहीं थे, आपको सीट पे नहीं थे. Isn't it? Yes, ma'am. आप सीट पे नहीं थे. You were not hearing. No, What ma'am. I I asked? was hearing. Okay, what was the question? Ma'am, about the penal code. I was Yes, just. what is Indian confirmed. Penal Code? What is Indian Penal Code? Ma'am, I don't know about the Indian penal code, but the penal कहीं code is सुना है? criminal मैम code. इट्स वो आईपीसी बोलते हैं ना, जो आईपीसी की धारा वो वाली. आईपीसी क्या है? अच्छा वही तो मैं पूछ रही हूँ. आईपीसी इंडियन पिनल कोड. अच्छा ओके. आईपीसी इंडियन पिनल कोड. कब सुना है, कहाँ सुना है? पनिशमेंट करते हैं ना मैम, जब क्राइम एंड उसकी पनिशमेंट वगैरह written form of law है IPC, Indian Penal Code. कमिटेड बियॉन्ड होता है ये. ओके ओके, अंडरस्टैंड. इंडियन पिनल कोड इज अ पर्टिकुलर जो धारा, आईपीसी धारा, इसमें के तहत आपको ये सजा मिलती है. सजा कहाँ मिलेगी? वो सजा जो है. Your voice is breaking. Your voice is not clear, ma'am. नाउ इट इज क्लियर. अच्छा आप लोग अपने माइक बंद करेंगे तो शायद सुनाई देगा. ओके, नाउ इट इज क्लियर. एनीबडी वन, कोई एक जन बोल दो. नाउ इट इज Yes, क्लियर ma'am. है ना, बिकॉज नंबर ऑफ माइक स्टार्ट होते हैं तब ऐसे ही होता है. ओके, इंडियन पिनल कोड जो आपने आईपीसी धारा सुनी है, इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको किसको क्या पनिशमेंट मिलनी है ना, वो कहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे. वो पूरा एक रिकॉर्ड है कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किस टाइप की पनिशमेंट मिलनी है, तो वो आपको आईपीसी के अंदर ही मिलेगी. तो आईपीसी के अंदर ऐसी कोई भी टाइप की एक्टिविटी जो आपको ये बोलती है कि दिस इज फॉरबिडन बाय योर लॉ, तो दैट विल बी अंडर द कोएर्शन. मतलब आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी कमिटिंग टू थ्रेट और कमिटिंग टू, मतलब या तो आप किसी को कर रहे हैं थ्रेटनिंग, या किसी को करने वाले हैं, या जिस तरीके की भी एक्टिविटी जो फॉरबिडन बाय लॉ है अंडर आईपीसी एक्ट, इट विल बी अंडर दिस पर्टिकुलर कोएर्शन. तो आपने किसी को भी धमकाया है, चाहे गन पॉइंट पे धमकाया हो, चाहे किसी को सुसाइड करने के लिए किया हो एनकरेज, या किसी को कोई पर्टिकुलरली किडनैपिंग पे किया हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी विच इज फॉरबिडन बाय लॉ फॉर सच टाइप ऑफ थिंग विल बी अंडर अ कोएर्शन. सेकेंड थिंग आता है दैट इज द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. डिटेन का मतलब होता है, डिटेन का मतलब क्या होता है? एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय डिटेन?
कैप्टिव रखना, क्या कैप्टिव रखना, कस्टडी मैम। नॉट टू डू, मतलब अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब मैं आपको ये नहीं करके दूंगा या आपको ये करना ही पड़ेगा। किसी भी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन आपने अगर नहीं किया तो ये होगा। आपने अगर, अभी तो मैंने किया ही नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ बोला था, लेकिन आपको ऐसा बोलना भी नहीं है। दैट इज अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। अगर नहीं साइन किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। राइट नाउ यू आर डूइंग और यू विल डू, दैट विल बी टू थिंग्स अंडर द क्वेश्चन, दैट विल बी देयर। So question under section 15 says that either you will be going to commit or threatening to commit. Either you are doing this, and second thing, that is unlawful detaining or threatening to detain any of the property or anything for any of the person. That will be with the question. Come to the essentials of question. There are 5 things under the essentials of question. First is again committing or threatening to commit. Again, anything type of activity which will be committing or threatening to commit anybody. Second thing आती है unlawful detaining or threatening to detain. Again, we have discussed this only. The third thing, that is other party or a stranger. Either A has done something such type of activity for B और C से उसने B के लिए करवाया है, स्ट्रेंजर के थ्रू करवाया है कि अगर ये साइन नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो इसके यहाँ किसी को किडनैप कर लेना या इसको पर्टिकुलर एक्सीडेंट करवा देना या समथिंग। तो मैंने अगर किसी स्ट्रेंजर से भी करवाई है या खुद कर रहे हैं तो आप दोनों, आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्रेजुडिस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन। प्रेजुडिस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, दैट विल बी विद द अगेन अनरीजनेबल सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज नॉट जस्टिफाइबल। जो जस्टिफाई नहीं होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी आप ऐसा करके अगर कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं जो अदर पर्टिकुलर पार्टी को हार्म कर रही है, तो दैट विल बी ऑल्सो अ क्वेश्चन। कॉज द अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज कॉजिंग एनी ऑफ द पार्टी। किसी को नुकसान होता है, किसी को हर्ट हो रहा है या किसी को किसी टाइप का मेंटल इलनेस हो रही है ड्यू टू दैट, या कोई स्ट्रेन पड़ रहा है, इस तरह की किसी भी कॉजिंग नहीं करना है किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। तो अगर ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑल्सो अ टॉर्चर हो गया या किसी भी टाइप का प्रेशर हो गया। इफ यू आर बीइंग प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ कॉज, दैट विल बी द क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट वन। I hope it was clear to you. Next is undue influence. Undue influence. Section 15 was question. Section 16 was undue influence. Okay. Section 16 says that if consent has been obtained by a person who is a dominant position compared to the other person, then it is undue influence. As I have told you, undue is something undue advantage. आपको पता है कि सामने वाली पार्टी आपके ऊपर डिपेंडेंट है या वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सच टाइप ऑफ थिंग्स में आप अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। अगर आप लेते हैं तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। So that type of contract will be an invalid contract or it will be a void contract. So when we take, there are three conditions which has been given over there. As per section 16 subsection 2, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. आपने किसी के विल को जो वो एग्री कर रहा है आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने कैसे करवाया? जस्ट प्रेशर में करवा लिया। जस्ट आपने प्रेशर या थ्रेटनिंग का नहीं है, यहाँ पर किसी को धमकाने का प्रेशर नहीं है। प्रेशर ये बात का है कि आपको पता है कि आपकी बात टालेगा नहीं क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऐसे कब होता है? हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशन ऐसा होता है, वो है तो ऑफिशियल रिलेशन, मतलब द थिंग इज इट इज समथिंग विद द सोशल एग्रीमेंट, बट आपको एक हस्बैंड को पता है कि वाइफ की बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो मैं इसको कैसे भी अपने नाम करा लूं क्योंकि मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएगी। This type of thing where when you are being making a contract, so that will be with the contractor's transfer of a property or certain type of transfer of any of the land or something like that. If any of the contract, if they are being making with the such type of things, so that the real relations may undue influence होना। रियल रिलेशन ऐसे रिलेशन जो आपके ब्लड रिलेशन है या ऐसे रिलेशन जो ड्यू टू सर्कमस्टेंस बन गए हैं। फादर एंड चाइल्ड, अगेन फादर एंड चाइल्ड, चाइल्ड 18 ईयर सबब है तो भी फादर को पता है कि ये मेरे को तो नहीं छोड़ के जाएगा क्योंकि मैं तो उसका फादर हूँ, जो बोलूंगा ये मेरे को साइन करके दे देगा। जो ग्रैंड पेरेंट्स ने इसके नाम से प्रॉपर्टी करके गए हैं उसको मैं अपने नाम से करवा लेता हूँ। Such type of thing, if it is being there, so that will be also the real relations में आप undue influence करते हैं। Apparent relations क्या होते हैं? Apparent relations ऐसे होते हैं, again the particular party will not leave you due to any of the reason, maybe because उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
because he is a slave of you, because he is a servant of you, maybe because you are having a certain type of rights that the party is not going to give you. तो जनरली एक मास्टर एंड स्लेव अगर आप बोलेंगे तो मास्टर एंड स्लेव की जो पर्टिकुलर रिलेशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं और नहीं जा सकता क्योंकि कोई और उसको रखेगा। तो यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन पोजीशन बिकॉज यू आर एट अ सुपीरियर पोजीशन। तो इस टाइप के अगर रिलेशन होते हैं तो द पार्टी विल बी अगेन अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकेंड आता है फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रियल था जो आपके हिसाब से नहीं बना है, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। फिड्यूशरी ऐसा है जो आपने बनाया है बाय योर चॉइस। तो बाय योर चॉइस में क्या हो सकता है, डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट है कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए। एनीबॉडी whose mic is on? Okay. Next comes that fiduciary relation. Fiduciary relation रियल का उल्टा है, दैट मीन्स यू हैव मेड ओनली दैट रिलेशन। आपने अपनी चॉइस से बनाया बिकॉज आपके पास अगेन ऑप्शन नहीं था बट आपके पास चॉइस थी। फॉर एग्जाम्पल अगेन डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास से ही आपको ऑपरेट करवाना है या वही एक सुपीरियर डॉक्टर है या बेस्ट डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर अगर एडवांटेज लेकर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है तो दैट विल बी विद द अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज बीइंग क्रिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ अनड्यू एडवांटेज ऑफ द पार्टी विच इज बीइंग बाय योर चॉइस। आपने चॉइस किया। तो हो सकता है सॉलिसिटर एंड उसके क्लाइंट का हो जाए कि एक वकील है और उसका क्लाइंट है, बिकॉज आपको पता है यही वकील है जो मेरे को केस जिता देगा, तो मैं जो भी बोले मैं अपनी प्रॉपर्टी पे नाम लिख कर दे देता हूँ ताकि वो मेरे को केस को हैंडल कर दे और मुझे को पर्टिकुलरली पास करवा दे या केस जिता दे। द थिंग इज लाइक दैट। तो द थिंग इज फिड्यूशरी रिलेशन में भी अगर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो दैट इज नॉट वैलिड। थर्ड आता है रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस रिलेशन। अगेन बिकॉज ऑफ एज, कोई 90 ईयर्स 85 ईयर्स का पर्सन है, उसको पता है ही इज हेल्पलेस और शी इज हेल्पलेस, शी कांट डू एनीथिंग। तो जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है उसने क्या किया, जबरदस्ती पूरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करा ली बिकॉज इसकी तो एज हो चुकी है या मैं तो इनका लुक आफ्टर कर रहा हूँ या इनको डिजीज से बचा रहा हूँ या सर्टेन टाइप ऑफ थिंग। तो बिकॉज आई एम टेकिंग केयर सो दैट ऑल द प्रॉपर्टी मस्ट। अगर इस टाइप के माइंडसेट से अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो दैट इज ऑल्सो विद द अनड्यू। वो अपनी बिल से दे दे तो दैट विल बी डिफरेंट, बट अगर उसका बिल नहीं है, वो जबरदस्ती अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है तो दैट विल बी अगेंस्ट। इलनेस भी वैसी हो गया, एज तो ड्यू टू एज, जो ओल्ड एज पीपल है, इलनेस में भी कोई बीमारी से पता है कि जब बेड रिडन है कोई पर्सन और बेड रिडन रहते रहते आपने उससे पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ले। अब वो जब ठीक हो जाएगा तो द पार्टी कैन क्लेम इनटू द कोर्ट दैट जब मेरे को जरूरत थी इसने मेरी हेल्प करी, नो डाउट, बट उसके भी आपको इसने मुझसे अपनी मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली या सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जो मैं नहीं करना चाहता था। तो द थिंग विल बी लाइक दैट। अनड्यू एडवांटेज लेते हुए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस इज अगेन समथिंग लाइक दैट। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर डिस्ट्रेस है, किसी का पैरालिसिस है, आप उसके बिहाफ पे उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा ले रहे हो क्या मैं आपका टेक केयर करूंगा लाइफ लॉन्ग, जस्ट आपको पूरी प्रॉपर्टी का सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। I hope it is understood to everyone. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. Okay. Come to the next. That is fraud. Fraud section 17. As you can see, sections आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, है ना? Section 17 is a fraud. What is the particular fraud? Fraud का जो normal term आपको पता है, that is only a fraud. Fraud is something किसी को धोखा देना। धोखा देना आप जानबूझ करके धोखा देना, दैट इज अ फ्रॉड। आप जान रहे हैं कि मैं इसके साथ फ्रॉड करने वाला हूँ जो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा प्रॉमिस, ऐसे प्रॉमिसेस को अभी हाँ बोल देता हूँ बाद में देखूंगा, तो सच टाइप ऑफ थिंग विल बी अ फ्रॉड। एंड व्हेन वी आर मेकिंग अ फ्रॉड द थिंग विल बी लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract with intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into the contract। मतलब आपने ऐसी किसी भी तरीके की कमिट किया है तो सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए, सामने वाली पार्टी को धोखा देने के लिए, सामने वाली पार्टी को नीचे दिखाने के लिए, सामने वाली पार्टी को किसी भी तरीके का हर्ट करने के लिए। इट्स अ थिंग कि मैं आज तो साइन कर लेता हूँ, उसको मैं बाद में जब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट सबमिशन का डे आएगा ना उस दिन मैं भाग जाऊंगा। That is a fraud, and you know that very well कि आप नहीं complete कर पाएंगे, still you are making a contract, that will be a fraud.
Okay, and now the terms will be like that: the representation that a fact is true. अच्छा, ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आगे फिर से ये रिपीट होने वाली है मिसरिप्रेजेंटेशन में. The representation that a fact is true when it is not true by one who does not believe it is not true. मतलब ऐसा ट्रूथ, ऐसा ट्रू या ऐसा फैक्ट जो आप जानते हैं सही नहीं है, तो भी आप बोल रहे हैं नहीं ये सही ही है, एंड जस्ट साइन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इन अ मॉर्गेज. आपकी प्रॉपर्टी आपको पता है ये मॉर्गेज में है, मतलब ये इसके ऊपर अभी लोन चल रहा है या आप उधार पे ये प्रॉपर्टी लिए हुए हो. आपको पता है कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अंडर अ मॉर्गेज, बट स्टिल यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टी कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूँ. तो सेल करना चाहते हो, प्रॉपर्टी आपकी है, इट्स ओके, नो इशू, बट वो मॉर्गेज में आप ये नहीं बता रहे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है एंड फ्री फ्रॉम ऑल द डेट्स व्हाट एवर इट इज बीन देयर, कोई मॉर्गेज नहीं है, कुछ नहीं है, आप साइन कर दो, ये प्रॉपर्टी अब से आपकी हो जाएगी, बस मुझे पैसे दे दो. पैसे लिए, साइन किया, पेपर दिए और आप भाग गए. The thing is like that. Now the particular party, when they come to know that the thing is with the mortgage, और लैंड में तो अभी बहुत सारे उधार है या अभी ये तो पर्टिकुलर पूरा लोन में चल रहा है, तो यू कैन सू टू इन द कोर्ट. सू करने का ये है, फ्रॉड वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड है, ये तो 100% वॉइड है. अब वो पार्टी को फाइंड आउट करेगी पुलिस कहाँ है, मिल गए तो फिर वो क्लेम होगा, क्लेम होने के बाद सूट का जो भी डिसीजन निकलता है वो बात की बात है. The thing is like that, fraud will be when a fraud, when you know that you are making a fraud. आपको पता है आप ऐसी चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं जो आपकी नहीं है या जो गलत है या जिसके ऊपर जो फैक्ट है वो आपने नहीं बताया, जानबूझ करके नहीं बताया. तो दिस विल बी विद द फ्रॉड. सेकेंड आता है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. एक्टिव कंसीलमेंट मतलब नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, दुनिया कोई भी बोल रहा है ना सब गलत है, जबकि आप भी जानते हैं कि वो गलत है. तो जब आप भी जानते हैं लेकिन उसके बारे में आप सही ना बताकर गलत को अगेन एंड अगेन ये कर रहे हैं कि नहीं व्हाट आई एम टेलिंग इट इज एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब जो आपने बोला दैट इज ओनली करेक्ट, एवरीथिंग इज रॉन्ग एंड यू आर अगेन एंड अगेन फोर्सिंग दैट पार्टी कि व्हाट एवर आई एम टेलिंग दैट द फैक्ट इज करेक्ट. So that is also fraud. थर्ड आता है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. अगेन मैंने बोला कि एंड में बताता हूँ, जब मैंने इसको नहीं सप्लाई करना है ना, इसका इतना नुकसान हो जाएगा तब इसको समझ में आएगा. तो दैट इज ऑल्सो कि आप ऐसी प्रॉमिस कर रहे हैं, आपका इंटेंशन पहले से ही पता है कि आप परफॉर्म नहीं करना चाहते. कम टू द नेक्स्ट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप डिसीव, सामने वाले को डिसीव करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट अगेन विद द, इट विल बी विद द फ्रॉड. Come to the last, that is any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी ओमिशन मतलब जो वर्क आप नहीं करके देंगे, ओमिशन ऑफ द पॉइंट, ओमिशन ऑफ द वर्क, सर्टेन थिंग्स विल बी देयर. अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी है तो वो भी आपकी फ्रॉड है, जो आपका लॉ बोलती है कि दिस इज अ फ्रॉड. ठीक है, मैंने तो नहीं किया, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया फ्रॉड, बट आप जानते हैं या लॉ जानती है कि कहीं ना कहीं आपने जो किया है that is a particular fraud and you are being actively concealing that no I have done correct. तो आपके बोल देने से तब तक नहीं होता जब तक वो particularly fraud declared by law नहीं. Okay, come to the next, that is misrepresentation. Misrepresentation is under section 18. Under section 18. Now one was a fraud which was uninnocently done. Misrepresentation is the fact which is innocently done. Innocently मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग सेलिंग अ हॉर्स. अगेन आपको मैंने प्रीवियसली भी एग्जाम्पल बताया, यू आर हैविंग अ हॉर्स, यू आर गोइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर हॉर्स टू अ पर्टिकुलर पार्टी हु इज रेडी टू बाय दैट, बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट नो दैट द पर्टिकुलर हॉर्स इज हैविंग इलनेस. आपको नहीं पता था कि वो एक हॉर्स जो है जिसको आप सेल करने वाले हैं वो किसी बीमारी, कोई बीमारी है उसको या कोई डिजीज है जिससे वो कभी भी डाइड हो सकता है. तो लेकिन ना जानते हुए आपने साइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव डिलीवर्ड दैट पर्टिकुलर हॉर्स टू द पार्टी, अदर पार्टी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड एंड यू हैव डिलीवर्ड, एंड अगर वो पार्टी क्लेम करती है ना कि इस पर्टिकुलर पार्टी ने मुझे बताया नहीं कि इसको डिजीज था और उसके बाद ये हॉर्स डाई हो गया, मैंने इतने पैसे इसको दिए, अब मुझे पैसे वापस चाहिए. So the thing will be like that. Maybe this type of contract can be voidable contract. हो सकता है voidable हो, but ये valid contract है because the party was innocent when he doesn't know about the fact it has been associated with that.
दैट विल बी टोटल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब वो मेडिकल पर्टिकुलरली शीट निकलवाएंगे और बहुत नंबर ऑफ थिंग्स निकलवाएंगे कि इसको सच में पता था कि नहीं था, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं किया है, कि इसने जानबूझ करके किया है। ये सब चीज जब प्रूफ होगी उसके बेसिस पे आइदर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर जस्टिफाई नहीं होती है तो समटाइम्स सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकॉज द पार्टी वॉज इनोसेंट। अब आप इसमें पॉइंट्स पढ़ के देखिए। द फर्स्ट वन दैट इज व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली asserts that a fact is true, then his information does not warrant it to be so true he believes it to be true। उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्ड्स में मत जाइए, इसका सिंपल है कि आप पॉजिटिवली assert कर रहे हैं कि आप नहीं जानते थे कि द पर्टिकुलर फैक्ट इज करेक्ट, और आपको जो पता था उसका रीजन यही है, या ये जो मेरे को जो पता था दैट वाज करेक्ट व्हाट एवर आई एम टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, A who is a manager of a company एक पर्टिकुलर टाइम से डील करते टाइम ये बोलता है कि मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 850 टन है पर मंथ और पर ईयर, वॉट एवर इट विल बी देयर। टर्नओवर में जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज 850 टन है, एंड आई एम श्योर दैट इट इज 850 टन, and the party accepted that and just ready to make a contract. But while seeing the documents, he came to know that the particular capacity of a company is 1000 tons. Now he came to the party कि आपने तो 850 बोला था और the particular actually thing is 1000 tons. So now the thing will be like that because the party was innocent and was believing on their mindset और उसके अपने knowledge पे उसने believe किया और उसके बाद 850 पर उसका जानबूझ करके नहीं किया या जानबूझ करके धोखा देने का mindset नहीं था, तो that time the discussion may happen like the contract can be become a valid contract, और वो पार्टी बोलते नहीं आपने जानबूझ करके झूठ बोला मुझसे तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो void भी हो सकता है, voidable भी हो सकता है और valid भी हो सकता है। So the thing will be like when the party is positively asserting something fact which is true according to the knowledge of the party itself, that is misrepresentation. Come to the second, that is where there is any breach of duty by a person which brings an advantage to a person committing it by misleading another to his prejudice. अच्छा, misrepresentation में ये भी हो सकता है कि आपने कोई पॉइंट नहीं पढ़ा, चिप हो गया, उसने बोला था आपको उसको होम डिलीवरी चाहिए, आपने वो पॉइंट नहीं पढ़ा और एग्रीमेंट साइन कर दिया एंड एवरीथिंग इज बीन कंप्लीटेड, बट आपने होम डिलीवरी नहीं करी। अब वो पर्टिकुलर पार्टी ने केस कर दिया कि इसने मुझे होम डिलीवरी नहीं करी जबकि हमने डिसाइड किया था। द पार्टी वाज टेलिंग कि आई हैव नॉट हर्ड लाइक सच टाइप ऑफ लाइन फ्रॉम द अदर पर्सन, इफ आई हैव हर्ड, और अगर मैंने सुना होता तो मैं डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है उनको छोड़कर उनके घर पे होम डिलीवरी करवा देता। तो द थिंग विल बी द मैटर ऑफ प्रूविंग, अगर ये प्रूव हो जाता है वो नहीं आप मुझे चाहिए नहीं, इसको बोलो मेरे पैसे वापस कर, तो प्रूव के टाइम में ये सब डिसीजन होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को उसको वैलिड करें कि इसको वॉइडेबल करें कि वॉइड। अब सामने वाली पार्टी मानने को ही तैयार नहीं है तो इट कैन बी हैपन लाइक दिस कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि कैंसिल कर दिया जाए, रिसेंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, रिसेंड इन द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी देयर, और टर्म्स ऐसे सेट कर दे कि अब ठीक है आगे कंप्लीट करके दे देंगे। So this will be again a misrepresentation. Next is when a party causes, however innocently, the other party to the agreement to make a mistake to the substance of the thing which is the subject of the agreement. Again the thing is innocently if you are concerning something, innocently अगर आपने activity करी है तो वो आपकी misrepresentation होता है। I hope it is understood with the fraud, what is fraud and what is misrepresentation. Is it clear? Yes, ma'am. है ना, बिकॉज दोनों में डिफरेंस बिटवीन भी आपको आ सकता है कि जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज फ्रॉड एंड व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मैम किसी एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने में और वॉइडेबल करने में क्या डिफरेंस है? अच्छा, वॉइड जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड जो है वो स्टार्टिंग से ही गलत है। एसेंशियल कोई भी एक एसेंशियल मिसिंग है तो वो वॉइड है। पूरे 10 में से कोई एक सपोज अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ माइनर, बाकी सारी चीजें सही थी, या ये हो गया द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, बाकी सारी चीजें थी, वो माइनर भी नहीं था, उसकी कैपेसिटी भी अच्छी थी, उसका कंसेंट भी था, एवरीथिंग वाज देयर, बट पॉसिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। एक एसेंशियल अगर मिसिंग होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल से ही वॉइड होता है।
ठीक है। वॉइडेबल होता है कि अभी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में ड्यू टू परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ड्यू टू अनसर्टेनिटी कुछ हैपन हो गई, या ड्यू टू उसका इंसॉल्वेंट हो गया वो पर्सन मिडिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, तो बाद में आके वो वॉइडेबल होगा कि सू में करेंगे, और फिर जब केस होगा तो उसके बेसिस पे ऐसा हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ दो, या आपने खुद ही डिसाइड कर दिया कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम गोइंग टू लीव इट। The thing is voidable. Voidable means बाद में जाके हो सकता है ये void हो जाए, voidable हो जाए, और void will be something which will be initial. ठीक है? Clear? हाँ मैम। Okay. Come to the last, that is Srikanth का last one है mistake. Mistake will be having section 20 and 21. This is again certain thing which will be थोड़ा बहुत complicated है, ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा अभी clear हो जाएगा। मिस्टेक इज एन एररनियस बिलीफ। आपको भी पता है मिस्टेक का जो कॉमन मीनिंग है दैट इज मिस्टेक, गलती हो गई, गलती से, तो गलती इज समथिंग एररनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। आपकी कोई मिस्टेक जो गलती से हो गई उसके ऊपर आपके कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। टू काइंड्स ऑफ मिस्टेक रहते हैं, वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड अदर वन इज मिस्टेक बाय स्टाफ। मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ में मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ मीन लॉ में लिखा था और आपने नहीं माना और आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तब क्या होता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में टू थिंग्स है, वन इज लॉ ऑफ द लैंड, और यू मे से इंडियन लॉ और लॉ ऑफ द लैंड, बोथ द थिंग्स आर सेम, आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय दैट। एंड सेकंड इज फॉरेन लॉ। व्हाट इज लॉ ऑफ द लैंड? लॉ ऑफ द लैंड इज समथिंग जहाँ के आप सब्जेक्ट हैं, जहाँ के आप सिटीजन हैं, वहां का जो भी लॉ कहता है, जो भी पॉइंट बोलता है, वो पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा बाय इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट व्हाटएवर यू आर मेकिंग। इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग दैट टाइम, इट विल बी योर मिस्टेक। तो मिस्टेक अगर लॉ ऑफ द लैंड के बेसिस पे होता है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। मतलब अगर आपने अपनी इंडियन लॉ का कोई पॉइंट नहीं फॉलो किया, या मिस्टेक हो गई पढ़ने के लिए, या आपसे वो पॉइंट स्किप हो गया था लॉ में और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई इज इट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? आपकी लॉ में था और आपने वो पॉइंट प्रेफर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी मस्ट बी अ रजिस्टर्ड कंपनी व्हेन दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट अगर ऐसा है, या लॉ आपका कहता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ हाउ इट कैन बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कैसे हो सकता है कि वॉइडेबल है? क्योंकि आप इंडियन लॉ के को फॉलो करते हैं, और इंडियन लॉ में एक पॉइंट लिखा है कि यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड कंपनी व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज टर्म्ड एज अ सेक्शन 21 says that it is a voidable contract. How? Any idea? इसको void क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, voidable क्यों बोल रहे हैं? आपने तो लॉ फॉलो नहीं किया मैम, क्योंकि वो शुरू से void नहीं रहता है, शुरू से इलीगल नहीं है, मिस्टेक से लॉ फॉलो नहीं किया। हाँ ठीक है, आपकी गलती थी, इट्स ओके, आपकी गलती थी। आपने पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट को में एक पॉइंट पर जो लॉ बोलता है आपको, उसको आपने फॉलो नहीं किया। लेकिन इसको फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? आपने लॉ फॉलो नहीं किया, आपकी मिस्टेक है तो ठीक है, लेकिन वॉइड क्यों नहीं, वॉइडेबल क्यों? एनी आइडिया? बिकॉज इट कैन बी रेक्टिफाइड। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी तो आप रजिस्टर करवा लीजिए, थोड़ा टाइम पीरियड और लगेगा, थोड़ा से पर्टिकुलर प्रोसेस में और टाइम लगेगा, बट यू कैन हैव एन ऑप्शन लाइक दैट, आपकी मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड इफ यू कैन रेक्टिफाई, इफ इट इज ऑन योर विल, आपकी विल पे है, अगर आप रजिस्टर करवाने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर लेंगे तो इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल इसलिए बोल रहा है, वॉइडेबल हो सकता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर सकते हैं बिकॉज उसमें लॉ ऑफ मिस्टेक थी, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ था लॉ ऑफ द लैंड में। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, अभी वॉइडेबल है, बट अगर आप इसकी पॉइंट को रेक्टिफाई कर देंगे तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इसको आप कंप्लीटली वॉइड नहीं बोल रहे, बाकी सारी चीजें तो सही है, एक पॉइंट अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ मतलब आप सिटीजन है इंडिया के, आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री के जो नॉर्म्स है वो आपने नहीं देखा और उसके साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या होगा? तो दैट टाइम इट विल बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कितने भी पॉइंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के होंगे वो लगेंगे। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? मिस्टेक बाय फैक्ट में टू थिंग्स आती है, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मीन्स
बायलैटरल मीनिंग ऑफ बायलैटरल From both sides. बोथ द साइड, दोनों की गलती, उसकी भी गलती थी और आपकी भी गलती है, दोनों ने नॉर्म्स नहीं पढ़े, दोनों की मिस्टेक थी, दोनों की पर्टिकुलर मिस्टेक थी। तो जब दोनों की मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब फॉरेन लॉ होता है इंप्लीमेंट, तो फॉरेन लॉ में भी सेम थिंग लगती है। अगर दोनों पार्टी, आपकी और उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों की गलती थी, तो कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म करना ही पड़ेगा। आपने भी नहीं पढ़ा, उसने भी नहीं देखा, तो द थिंग विल बी लाइक दैट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फिर से दोनों पूरी लॉ पढ़िए और फिर उसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं खत्म हो जाएगा जब दोनों की मिस्टेक होगी। यूनिलैटरल मिस्टेक में इट इज नॉट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई इट इज नॉट अवॉइडेबल? यूनिलैटरल मतलब सिंगल, एक तरफ से मिस्टेक है, दूसरा तो अपने पॉइंट में एकदम क्लियर है, उसको सब चीज पता है, व्हाटएवर द लॉ और द व्हाटएवर द पॉइंट इट इज बीन देयर। तो यूनिलैटरल में अगर एक ही किसी की गलती है तो उसको या तो गलती सुधारने बोलिए और रेक्टिफाई करने बोलिए। सेम विद द फॉरेन लॉ में भी यही होता है कि एक पार्टी की अगर मिस्टेक है तो वो अपनी या तो गलती सुधार ले या तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी, कैन बी रेक्टिफाइड, इट कैन बी हैव अ सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट, so that will be with the unilateral. I hope the mistake is telling anything. Now it is clear, everything is clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, we will continue with the other essentials. Last एक class और लगेगी, मतलब next class और लगेगी essential. अच्छा, after essential we will be having a company also in first CP. फर्स्ट सीटी में आपका कंपनी का भी एक पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट टू क्लासेस अभी अपने पास बची है। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू कंप्लीट विद द एसेंशियल, एंड उसके लास्ट जो एक सैटरडे वाली क्लास रहेगी, वी विल बी हैविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी। साइमल्टेनियसली रीड ऑल द पॉइंट्स व्हाटएवर इट इज बीन देयर विद द थिंग। ओके, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में हमारा कंपनी, अच्छा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक और है वो भी हम नहीं कर रहे हैं, वो सीटी में आएगा भी नहीं, हम सीटी के बाद उसको कवर करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सीटी में जो आपका कोर्स आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट, और उसके साथ में जो आएगा दैट विल बी विद द कंपनी का स्टार्टिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन तक का जो पॉइंट है वो पूरा आएगा। तो आई विल ट्राई कि मैं उसको कंप्लीट करूँ।